Good morning, class 11. This is your subject accountancy, chapter number 9, journal, lecture number 9. Beta, in our last lecture, we have done the questions till question number 10. So let's begin question number 11. See, beta, pass journal entries for the following. You have to read this question carefully. This question is given in your book on page number 9.68. Fine. It is given on page number 9.68. First of all, read this first one. Jan 6, purchase goods from Henry for 50,000 at 10% trade discount and 4% cash discount and paid 60% amount by check. See beta. First of all, we will see its working note so that it will be easy for us to calculate and do entry as well. Cost price of the goods, it is given in the question 50,000. Less trade discount 5,000. So purchase price will be 45,000. So beta first entry will be with rupees 45,000 ना. तो they are saying पेमेंट हुई कैश में कितने परसेंट 60%. तो किसका 60% होगा 45,000 का 60%. 27,000 जो क्या मिला है आपको कैश मिला. लेस कैश डिस्काउंट कितना 4%. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन 4% of 27,000. That will be 1,080. So finally the cash paid will be 25,920. If you will solve this working note, now entry will be very much easy for you. Fine. Beta, they are saying she purchases goods from Henry. So entry should be purchases account debit to Henry na. But they are saying that they have paid 60% amount by check. 60% अमाउंट उन्होंने चेक से दी है. 60% ही हमने निकाला ना यहाँ पर 27,000. वो तो आपका चला जाएगा बैंक में, लेकिन बैंक में जाएगा आपका 25,920. क्यों? क्योंकि हमने जो चेक से दी है उसका डिस्काउंट जो हमें मिला है 27,000 का 4%, वो डिस्काउंट में भी तो लिखेंगे ना. फाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दिस वर्किंग नोट. Cost price of the goods 50,000, less trade discount 5,000, purchase price 45,000. Now payment in cash 60% उन्होंने चेक से दी है. फाइन. तो 45,000 का 60% 27,000. इसमें कैश डिस्काउंट करेंगे 27,000 का 4% 1,080 रुपीज. नाउ फाइनली दी अमाउंट पेड थ्रू चेक 25,920. ये चेक के थ्रू पे किया है, दैट्स व्हाई वी विल क्रेडिट बैंक अकाउंट. फाइन. लेट्स सी दी एंट्री नाउ. सी बेटा 2019 Jan 6 परचेजेस अकाउंट डेबिट 45,000 वर्किंग नोट में किया ना अभी. टू बैंक अकाउंट 25,920. To discount received 1,080. Now we will deduct 45,000 में से 25,920 माइनस करेंगे और 1,080 माइनस करेंगे. माइनस करने के बाद आएगा 18,000 जो कहाँ जाएगा टू हेनरीज अकाउंट. अंडरस्टूड. बाकी तो हेनरी के अकाउंट में जाएगा ना, जो उसने पे किया उसकी एंट्री हमने कर दी बैंक अकाउंट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट.
और जो पे करना है वो तो हेनरी के अकाउंट में जाएगा ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू हेनरीज अकाउंट. फाइन. An entry will be goods purchased and discount received on cash payment. Now see cost price of goods. नेक्स्ट एंट्री देखिए, इन्होंने बोला है नेक्स्ट एंट्री है Jan 15 bought or we can say purchased goods from Amit 2 lakhs, 20% rate discount and 5% cash discount. Paid 3/4 of the amount in cash at the time of purchase. अब इसने कैश में पे किया है एट द टाइम ऑफ परचेज. फाइन. देखिए कॉस्ट प्राइस है गुड्स का कितना 2 lakhs माइनस 20% रेट डिस्काउंट 40,000. परचेज प्राइस कितना हुआ आपका 1,60,000. कैश में कितनी पेमेंट की 3/4, तो 1,60,000 का 3/4 विल बी 1,20,000 लेस डिस्काउंट 1,20,000 का 5% 6,000. कैश पेड 1,14,000. फाइन. Now the entry will be purchases account debited 1,60,000 to bank account 1,14,000 to discount received account 6,000 to Amit's account 40,000. Understood बेटा. 1,14,000 और 6,000 I sold in working note. 1,60,000 में से 1,14,000 माइनस करेंगे और 6,000 माइनस करेंगे, या इन दोनों को टोटल करके 1,20,000 बनेंगे. 1,60,000 में से 1,20,000 माइनस कीजिए, वो आएगा आपका 40,000. कहाँ जाएगा वो अमित अकाउंट. कहाँ पर अमित अकाउंट. फाइन. सो गुड्स परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन कैश पेमेंट. नेक्स्ट एंट्री इज Jan 8. इन्होंने लिखा है सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 less 20% rate discount and 4% cash discount. They are saying if the payment is made within 7 days, 75% of check payment is received on Jan 23rd. 18 को इन्होंने बेचा, सामान बेचा शेरपा को, और Jan 23rd को 75% पेमेंट मिली है. इसका मतलब क्या है 5 डेज में मिली है ना, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि गिवन है देखिए सेकंड लाइन में 4% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज. फाइन. तो एंट्री विल बी शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट. कितने से 40,000 से. 40,000 कैसे आया 50,000 का 20% 10,000. 50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे 40,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी. फाइन. नाउ नेक्स्ट एंट्री इज Jan 23rd. इन्होंने बोला जो पेमेंट मिली ना 75%, 40,000 का 75% इज 30,000. फाइन. तो टू शेरपाज अकाउंट 30,000. पेमेंट किसके थ्रू की है चेक के थ्रू ना, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू शेरपाज अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड कितना बेटा 4%. 30,000 का 4% 1,200. बाकी अमाउंट आपका बैंक में चला जाएगा 28,800. अंडरस्टूड. तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू शेरपाज अकाउंट. बैंक अकाउंट 28,800, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 1,200 एंड शेरपाज अकाउंट 30,000. Narration is 75% payment received by Sherpa and allowed cash discount. Now see Jan 25th. उन्होंने बोला सोल्ड गुड्स टू गरिमा 1 लाख का 20% रेट डिस्काउंट. 1 लाख का 20% 20,000. 20,000 को 1 लाख में से माइनस कीजिए, एंट्री विल बी विद ₹80,000. यही करते आ रहे हैं ना हम हमेशा, तो अभी भी यही करना है.
Jan 25th, Garima's account debited to sales account 80,000, 80,000. Narration is goods sold to Garima on credit. अब देखिए बेटा आगे की 5% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड विद इन 15 डेज. उन्होंने कहा कैश डिस्काउंट देंगे अगर पेमेंट विद इन 15 डेज हो जाती है तो. लेकिन गरिमा ने क्या किया 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ फिफ्थ को दी और 60% ऑफ द रिमाइंडर बचे हुए का 60% जो है वो उसने दी है Feb 15 को. तो हेयर 1/4 ऑफ द अमाउंट उसने Feb 5 को दी है. इसका मतलब इस पे तो कैश डिस्काउंट मिलना चाहिए है ना, क्योंकि उसने बोला है कितने दिन में पेमेंट करने पर कैश डिस्काउंट मिलेगा 15 डेज में. तो Jan 25 से Feb 5 कितने होते हैं 10 डेज होते हैं ना, तो आराम से हमें कैश डिस्काउंट मिल सकता है, गरिमा को मिल सकता है. फाइन. नाउ 1/4 ऑफ द अमाउंट 1/4 ऑफ 80,000 कितना हुआ 20,000 ना. 20,000 का कितने परसेंट कैश डिस्काउंट होगा बेटा 5%, 1,000. और बाकी अमाउंट जो है वो कहाँ जाएगी आपकी बैंक अकाउंट में. कहाँ जाएगी बैंक अकाउंट में. फाइन. Now finally the entry will be bank account debited with rupees 19,000. Discount allowed account debited 1,000 to Garima's account 20,000. Fine. Check received from Garima and allowed cash discount. Understood? Now see beta, one more thing is there. They are saying 60% of the remainder. 80,000 का 20,000 तो हम दे चुके हैं ना. 1/4 दे चुके हैं, बचा कितना 3/4 मतलब 60,000. तो अब जो है 60% ऑफ द रिमाइंडर कैश में पे किया, तो इस पे हम कोई डिस्काउंट नहीं देंगे ना ही कोई एंट्री करेंगे. व्हाई? बिकॉज इट इज गिवन. दे आर सेइंग कि 15 दिन के अंदर देना था, 15 दिन के अंदर तो दिया नहीं. Feb 15 को दिया है, Feb 15 को तो 15 दिन से क्रॉस हो जाता है ना, तो इसकी नॉर्मल एंट्री करेंगे. कैश अकाउंट डेबिटेड टू गरिमाज अकाउंट. हाउ मच 60,000 60,000. And narration will be cash received from Garima. Fine. And you will do total as well. देखिए बेटा, note is also given. Cash discount can be availed only if the payment is made within 15 days. Since payment is made on Feb 15, so no discount will be allowed to her. समझ में आया क्यों नहीं किया हमने यहाँ पर डिस्काउंट? क्योंकि उसने टाइम लिमिट क्रॉस कर दी थी पेमेंट करने की. फाइन. अंडरस्टूड? Let's see next question now. Question number 12. Sold goods to Dilip of the list price of. देखिए journalize the following transaction in the books of Dikshit and Sons. March 2, March 16, March 20th, March 26. First of all, we'll study first entry. We'll read first entry. Beta, this question in your book it is given on page number 9.68. Fine. It is given on 9.68. लेट्स सी फर्स्ट एंट्री. दिलीप को 62,000 का सामान 60,000 में सेल किया, तो 2,000 हमारा क्या हुआ बेटा 62,000 का सामान हमने 60,000 में सेल किया है, तो इन्होंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि लिस्ट प्राइस. इसका मतलब इन्होंने ऑलरेडी ट्रेड डिस्काउंट निकाल दिया है 2,000. मैंने आपको बोला था ना लिस्ट प्राइस जब होता है तो ट्रेड डिस्काउंट हम देखते हैं, तो इसका मतलब इन्होंने ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद की अमाउंट दी है 60,000. सो द एंट्री विल बी ऑफ ₹50 विद ₹60,000. फाइन.
entry will be Dilip account debited to sale account. Fine. 60,000, 60,000. March 2, 2018. And the narration will be sold to Dilip. Now see next entry. Purchase goods costing 2 lakhs. 2 lakhs का सामान हरी एंड कंपनी से परचेज किया. 75% इमीडिएटली पे किया. क्या करने के लिए? कैश डिस्काउंट लेने के लिए, 4% डिस्काउंट लेने के लिए. फाइन. तो एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू हरी. लेकिन इसका 75% हमने पे किया है, ऑलरेडी पे किया है चेक के थ्रू. तो टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड है ना. 2 लाख का 25% निकालिए, कितना आएगा? 50,000. सबसे पहले परचेजेज अकाउंट डेबिटेड टू हरी एंड कंपनी 50,000 लिख देंगे. अब कितना अमाउंट बचा? 2 लाख में से 50,000 माइनस कीजिए, 1,50,000 बचा ना. तो 1,50,000 उसने चेक के थ्रू पे किया है इमीडिएटली. ठीक है. और 4% डिस्काउंट मिला है. तो 1,50,000 का 4% कितना हुआ बेटा? 6,000. ये आ जाएगा आपका डिस्काउंट रिसीव्ड में. 1,50,000 में से 6,000 माइनस कीजिए, आएगा आपका 1,44,000 जो आपका आएगा टू बैंक अकाउंट. क्यों? क्योंकि इसने पेमेंट की है चेक के थ्रू, और जो क्रेडिट में पेमेंट की है उसमें इसका नाम आ जाएगा टू हरी एंड कंपनी 50,000. Understood this entry? So now the entry will be purchases account debited 2 lakh, to Hari and Company 50,000, to bank account 1,44,000, to discount received account 6,000. And finally the narration will be purchases from Hari and Company 75% paid through check and partly credit. Fine? Understood this entry? Now next entry. See beta, the entry of March 20. March 20 की entry है. They are saying Vishal Traders costing 40,000 at 25% profit. Fine. And allowing 10% trade discount and 10% cash discount. Fine. Now see, they are saying received 80% payment immediately by check. Fine. Now see, sold goods to Vishal Traders. So first of all we have to do this entry with rupees 45,000. Why it is like that? Beta see, first of all we will calculate 25% of 40,000. That will be 10,000. So 40,000 में 10,000 ऐड करेंगे 50,000. एंट्री तो 50,000 से होनी चाहिए ना, बट इट इज गिवन कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है. तो 50,000 का 10% कितना हुआ आपका? 5,000. 50,000 में से 5,000 माइनस कीजिए 45,000. हम हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर रहे हैं ना. वी आर डूइंग लाइक दिस ओनली. सो नाउ द एंट्री विल बी विद रुपीज 45,000. फाइन. Understood? Now they are saying, see, it is given cash discount 10%, received 80% payment immediately by check. 45,000 का 80% they are saying immediately through check received. Fine. एटी % of 45,000 will be 36,000. इमीडिएटली पे किया इसलिए 10% कैश डिस्काउंट देंगे. 36,000 का 10% लगाएंगे 3,600. दैट विल बी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. 36,000 में से 3,600 माइनस करेंगे, वो आएगा आपका 32,400. दैट विल बी इन फ्रंट ऑफ विशाल ट्रेडर्स अकाउंट. एंड
45,000 में से 36,000 माइनस करेंगे, वो आएगा आपका बैंक अकाउंट 9,000. नाउ द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड 9,000, विशाल ट्रेडर्स अकाउंट डेबिटेड 32,400, discount allowed account debited 3,600 to sales account 45,000. Understood beta? Sold to Vishal traders and partly received through check and partly credit. ठीक है. Now next entry is, देखिए बेटा, sold goods to Bridge and Company 50,000 at 40% profit, allowing 10% trade discount and 5% cash discount. Bridge and Company paid the full amount by check and availed cash discount. They are saying 50,000 at 40% profit. 40% of 50,000 is 20,000. 50,000 plus 20,000 70,000. बट 70,000 का क्या हम 70,000 से एंट्री करें? नहीं. इट इज गिवन 10% ट्रेड डिस्काउंट. अब हम उसमें से 70,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करेंगे, वो आएगा आपका 7,000. 70,000 में से 7,000 माइनस कीजिए, ये आएगा आपका 63,000. ये 63,000 आपका जाएगा टू सेल्स अकाउंट. फाइन. 63,000 का 5% कैलकुलेट कीजिए, ये आएगा आपका कैश डिस्काउंट जो होगा आपका डिस्काउंट अलाउड. और जो बाकी बची हुई अमाउंट है वो कहाँ से जाएगी? बैंक अकाउंट में जाएगी. वाई? बिकॉज दे हैव पेड थ्रू चेक. ब्रिज एंड कंपनी ने हमें चेक के थ्रू पे किया है, तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आएगा ना. आएगा तो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड विद ₹59,850. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 3,150 टू सेल्स अकाउंट 63,000. So the narration will be sold to Bridge and Company, received fully through check. Total amount is there. Fine. So beta, your homework is you have to do these entries in notebook and practice a lot along with the related illustrations. Fine. This is your homework. You have to do these questions in fair notebook and practice these questions as well as illustration related to it.